Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are will be safe and sound. Today we will be discussing unit 2, that is on tissue, anatomy and physiology of tissue. So in the last lecture we had discussed cell in detail. तो फ्लो शीट में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनेली एज अ सब यूनिट ऑफ सेल which perform a specific or a particular function. तो उसके एग्जांपल राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, लाइसोसोम्स का जो है डाइजेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस. Mitochondria is known as powerhouse of the cell which is responsible for energy synthesis. तो हर एक ऑर्गेनेली का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. When different organelles combine, they form a cell, which is the structural and functional unit of all living organisms. We have discussed cell in detail in the previous lecture. So when different cells combine, they form a tissue. So today we will discuss tissue in detail. When different tissues combine, they form organ. Combination of different organs form a system, and when different systems combine, it will form organism. जिस तरह न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. अब न्यूरॉन जो है इट्स अ सेल. when different neurons combine, they form nervous tissues. When different nervous tissues combine, they form brain, spinal cord, nerves. When these organs combine, they form a system which is called nervous system. ठीक है, तो today we will be discussing about tissue. Tissue is a collection of cells which have similar structure and perform a relatively common function is known as tissue. So tissue is basically a combination of two or more than two cells जिनका फंक्शन जो है वो relatively common होते. They may be same, the function may be same or particular. दो तीन किस्म के टिश्यूज सेम ही फंक्शन करेंगे बॉडी में, और एक टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा. जैसा कि नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यूज का काम है टू कंडक्ट इम्पल्सेस, टू कंडक्ट मैसेजेस. अब ये जो नर्वस टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, या जो फॉर एग्जांपल एक्सक्रीटरी सिस्टम का अपना फंक्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सक्रीशन, इसी तरह फिल्ट्रेशन किडनीज में. तो टिश्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ two or more than two cells which perform a relatively common function, and the study of tissue is known as histology. Histo mean tissue and logy means to study. So histology is the study of tissue, and the study of cell is known as cytology. So types of tissues. In human body there are basically four types of tissues: epithelial tissue, नर्वस टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यू. तो इन फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जो है, इन सारे टिश्यूज़ की कम्बिनेशन से बनेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स, और फिर उन ऑर्गन्स की कम्बिनेशन से बनते हैं सारे सिस्टम्स, और उन सिस्टम्स की कम्बिनेशन से फिर एक ऑर्गेनिज्म बना है. जिस तरह हमारी बॉडी भी हो रहा एन ऑर्गेनिज्म. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग the first type of tissue, that is epithelial tissue, in detail in today's lecture. So the first type of tissue, that is epithelial tissue. Epithelial tissue is that type of tissue in which the cells are arranged in forming a sheet. इसमें जो cells की arrangement होती है, they will form a sheet. It will cover the body surface. Internal cavities or tubes is known as epithelial tissues. तो epithelial tissue वो type of tissues है जिसमें cells are arranged in such a form that it will form a sheet, और ये sheet पूरी body को cover करेगा, body surface को cover करेगा, internal body cavities को
एंड ट्यूब्स को। अब देखिए कवर आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, जैसा कि स्किन। अब स्किन में कौन सा एपिथेलियम होता है? केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इट इज कवरिंग द बॉडी सरफेस फ्रॉम आउटसाइड। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन ग्लैंड्स, इन ऑल टिब्यूज, इंटरनल लाइनिंग्स। अब देखिए इसोफेगस है, यूरेटर है, ट्रेकिया है, लेरिंग्स है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है। तो ये जितने भी सारे इंटरनल ट्यूब्स या इंटरनल, उनकी लाइनिंग जो है इंटरनल, वो किसने की है? एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू इज बेसिकली अ शीट जो बॉडी सरफेस को कवर करेगा फ्रॉम आउटसाइड, एंड इट्स आल्सो प्रेजेंट इन इंटरनल बॉडी कैविटीज एंड ट्यूब्स। What is the function of epithelial tissue? Epithelial tissues के functions क्या है? The first function that is protection. तो epithelial tissue जितने भी है it will provide protection. अब देखिए skin में जो है squamous epithelium है। अब ये जो squamous epithelium skin जो है it is providing protection to the underlying organs. Second is defense. अब एपिथेलियम का फंक्शन जो है इट इज़ एन इम्यून सिस्टम, हमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन्फेक्शन से हमें बचाता है। अब देखिए जिन लोगों में बर्निंग हो जाती है, बर्निंग में स्किन जो है वो जल जाता है। जब स्किन जल जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ईजिली एंटर द बॉडी, और ऐसे पेशेंट में, बर्निंग पेशेंट में, पेशेंट्स ऑफ बर्न हिस्ट्री, उनमें डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं। ये जो बैरियर होता है स्किन का वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ऑर्गेनिज्म कैन इजीली एंटर द बॉडी। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशंस इन द स्टमक। अब स्टमक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं विच आर एसिडिक इन नेचर, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। तो वो भी सिक्रीट होते हैं फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू। द फोर्थ फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। अब देखिए जितने भी इंटरनल ट्यूब्स की लाइनिंग्स हैं, दे आर lined by epithelial tissue and which help in the process of absorption and secretions, जैसा कि डाइजेस्टिव ट्रैक में हो गया, इसके अलावा ग्लैंड्स हो गए। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इज स्वेट इन द स्किन। अब देखिए स्किन में चूँकि स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है और हमारे बॉडी से कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर, salts and urea is lost in the form of sweat in the skin. The sixth type is filtration. Filtration is also a function of epithelial tissue. अब ये जो epithelium है which is present in the kidneys and lungs, वहाँ पर वो filtration करते हैं of the urine or etc. Know the classification of epithelial tissues. अब epithelial tissue को हम divide करेंगे on the basis of number of cell layers. तो चूँकि epithelial tissues में cell are arranged in layers to form sheets. अब बाज़ ऐसे epithelial tissues होंगे जिसमें single layer of cell होते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जिसमें two or more than two layer of cells होते हैं। तो जो single layer of cells से बने होते हैं उसको हम कहते हैं simple epithelium, और जो टू और मोर देन टू लेयर्स ऑफ सेल से बने होते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और इट में आल्सो बी कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियम। सो सिंपल एपिथेलियम इज द टाइप ऑफ एपिथेलियम विच इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो सिंपल एपिथेलियम में जो सेल्स होंगे वो एक सिंगल लेयर में उसकी अरेंजमेंट होगी, एंड इट इज़ मोस्टली फाउंड ऑन एब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रीटरी सरफेसेस, जैसा कि ग्लैंड्स हो गए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। तो ये उन एरियाज में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एट द टाइप ऑफ एपिथेलियम इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू और मोर लेयर्स। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज आल्सो नोन एज कंपाउंड एपिथेलियम। इसमें जो सेल्स होते हैं वो टू और मोर देन टू लेयर्स में अरेंज होते हैं, एंड इस मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। तो वो एरियाज जिनमें प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है वहाँ पर सिंपल एपिथेलियम होते हैं। जिन एरियाज में प्रोटेक्शन नीडेड होता है तो उन एरियाज में प्रेजेंट होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब देखिए दिस क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर्स।
ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल। ये जो एपिथेलियम जिन सेल से बना है उस सेल की शेप के बेस में हम इसको क्लासिफाई करते हैं इनटू थ्री टाइप्स, कॉलमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड स्क्वेमस एपिथेलियम। सो जो कॉलमनर एपिथेलियम इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, कॉलमनर मीन कॉलम शेप। तो ये जो इसमें सेल्स होंगे दे विल बी कॉलम शेप, टॉल शेप और एलोंगेटेड और पिलर लाइक। तो कॉलमनर एपिथेलियम में जो सेल्स होंगे वो इसी तरह कॉलम शेप्ड होंगे, पिलर लाइक होंगे। एंड इट आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मोस्टली प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शंस आर एब्जॉर्प्शन एंड secretion. Cuboidal epithelium is also known as glandular epithelium. The cells are cube shaped boxes. तो इसमें जो cells की shape होगी they will be in the form of box or cube. They are mostly present in glands and kidney tubules. Squamous epithelium, squamous, the cells are irregular and flat. इसमें जो cells होंगे they will be flat, इस तरह flat होंगे. They are present in lungs, kidneys, esophagus and lining of the mouth. तो when जब on the basis of shape of the cell, if the shape of the cell is tall column pillar like, it is called columnar. If the shape of the cell is in the form of box or cube, it is cuboidal, and when it is flat, it is known as squamous epithelium. Another type of epithelium is transitional epithelium. Transitional epithelium is the type of epithelium which are made up of such type of cells which have the ability of changing its shape. तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम के जो सेल्स होंगे उनकी ये एबिलिटी होती है कि इट विल चेंज देयर शेप, दे आर पेयर शेप्ड एंड इट इज प्रेजेंट इन द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए यूरिनरी ब्लैडर में जो एपिथेलियम है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब यूरिनरी ब्लैडर में जो है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। अब जब यूरिन में जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन अकोमोलेट होगा तो द यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स होता है ताकि टू एकोमोडेट यूरिन। अब देखिए जब ये रिलैक्स होगा तो जाहिर बात है जो एपिथेलियम होगा उसकी शेप चेंज होगी। इसी तरह ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है तो फिर भी साइज ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल विल चेंज। तो यूरिनरी ब्लैडर में जो एपिथेलियम है डेट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशन मीन्स टू चेंज। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम नाम से जाहिर है कि जिन सेल्स से बना होगा तो वो सेल्स जो है दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप। तो दिस वाज ऑल अबाउट एपिथेलियम। थैंक यू वेरी मच।